की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधे आपको ले चलते हैं लाइव। Commodore Ravi Nair, Colonel Sophia Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump
at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of Miss Campaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian Armed Forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistics installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. बड़ी खबर रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अफवाहें फैलाई। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पाकिस्तान ने अफवाहों का सहारा लिया। आज की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के कई एयरबेस को नेस्तनाबूद किया गया। सीज फायर पर, युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया और कहा गया सेना की तरफ से कि हमने जिम्मेदारी से काम किया। आज की बड़ी खबर, हमने जिम्मेदारी से काम किया, पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया। हमने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत की सेना का बयान, रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना का बयान, हमने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया। सीज फायर पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान कई बातों का जिक्र किया गया है। सहमति जो हुई है संघर्ष विराम की, उसका जिक्र करते हुए हमारे देश की सेना ने कहा कि हमने जिम्मेदारी से काम लिया है, पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। भारत की सेना अपनी रक्षा में पूरी तरह से सक्षम है। पाकिस्तान ने झूठ और अफवाहों का सहारा लिया। पाकिस्तान ने झूठ और अफवाहों का सहारा लिया। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया।
भारतीय सेना अपने देश की, अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। भारतीय सेना की तरफ से बयान दिया गया रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सहमति बन चुकी है संघर्ष विराम को लेकर, युद्ध विराम को लेकर। हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया और वहां पर अटैक किए। हमने जिम्मेदारी से काम किया है और हम अपने इस देश की सेना को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। भारत की तरफ से संयम भी दिखाया गया, भारत की तरफ से एग्रेशन भी दिखाया गया, भारत की तरफ से एक प्रतिबद्धता भी दिखाई गई आतंकवाद के खिलाफ, और भारत की तरफ से दुनिया को यह भी दिखा दिया गया कि अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, अगर कोई हमारे बेगुनाह नागरिकों पर अटैक करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान के लिए उसी वक्त जरूरी था कि पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, देखिए जो भी संघर्ष होता है सभी का नुकसान होता है, थोड़ा और ज्यादा, भारत का भी हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान को उसी वक्त खामोश बैठना चाहिए था। भारत ने क्लियर कर दिया था कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई कि हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, उन्हीं को अटैक किया, उन्हीं को टारगेट किया, ना पाकिस्तान की अवाम को टारगेट किया गया, ना पाकिस्तान की सेना को टारगेट किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान से यह कहा गया कि आप आतंकवाद के खिलाफ बोलिए, आतंकवाद का समर्थन मत कीजिए। और अब संघर्ष विराम हो चुका है। युद्ध कितने ही साल क्यों न चले, एक दिन रुकता जरूर है। युद्ध कितने ही साल क्यों न चले, एक दिन रुकता जरूर है। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी कभी न कभी खत्म होगा। अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा था वो भी एक दिन खत्म हुआ। इराक और अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा था वो भी एक दिन खत्म हुआ। खत्म होते हैं, लेकिन इस दौरान मजबूती की बात सामने आती है, इस दौरान विश्वास और भरोसे की बात सामने आती है, इस दौरान सच्चाई की बात सामने आती है। और भारत की सेना ने, भारत के लोगों ने अपना विश्वास दिखाया। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपने देश और अपने देश के नागरिकों की हिफाजत की है। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर यह विश्वास दिलाया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ ऐसे सख्त कदम उठाएंगे जो दुनिया ने नहीं सोचे होंगे। भारत की सरकार ने विश्वास दिखाया कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी ये प्रतिबद्धता है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज हम अपने देश की सेना को सलाम करते हैं कि जिस रणनीति के साथ, जिस सहयोग और समन्वय के साथ भारत में ये सब कुछ हमने देखा है अपनी आंखों से पिछले कुछ दिनों के अंदर, ये काबिल तारीफ है। भारतीय सेना का बयान, पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया। हमने किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत की सेना अपनी रक्षा में पूरी तरह से सक्षम है। पाकिस्तान ने अफवाहों का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया और कई झूठ पाकिस्तान की तरफ से फैलाए गए। पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय सेना का बयान। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद दुनिया को यह पता चला कि दोनों देशों में संघर्ष विराम को लेकर सहमति बन चुकी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने भी अपने सोशल साइट पर पोस्ट किया। इसके बाद फिर भारत के विदेश सचिव विवेक मिश्री ने कहा कि हां, संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से इस पर फोन आया और उनकी तरफ से इस पर पहल की गई संघर्ष विराम को लेकर। भारत के विदेश मंत्री ने भी ये कहा है, जयशंकर ने, कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और फिर हमारे देश की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से इस दौरान अफवाहों का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया। भारतीय सेना ने जिम्मेदारी के साथ काम किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह और बर्बाद किया और भारतीय सेना की तरफ से किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारतीय सेना ने जिम्मेदारी और संयम के साथ कार्रवाई की है और इसलिए हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। इस सब के बाद हमारे देश के अंदर से जो एक जुटता की तस्वीर नजर आई, भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से एक ही आवाज आई कि हम अपने देश की सरकार और हम अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की गतिविधि के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और हम उसके लिए अपनी सरकार को समर्थन करते हैं। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि जब देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात हो तो फिर सारी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं
और आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमने अपने उन बेगुनाह नागरिकों का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, जब हमारे बेगुनाह नागरिकों को पहलगाम में मारा, और उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट के बाद जिस तरह की भी तस्वीरें सामने आई, उसका भी करारा जवाब दिया गया। भारतीय सेना को सलाम है, सैल्यूट है। और भारतीय सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो रणनीति इस दौरान अपनाई गई, वो भी काबिल तारीफ है। और आज का दिन हम सबके लिए बहुत यादगार रहने वाला है। आज एक भारत ने फिर से प्रतिबद्धता दिखाई है कि आतंकवाद के खिलाफ कभी कोई समझौता नहीं होगा, आतंकवाद को इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहेगा। आज बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया गया, जिस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं वो हम सब के लिए यादगार रहने वाली हैं। और वो सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि जब देश की बात आती है तो हर एक भारतीय बहुत मजबूत है और एक है। बहुत सारी ताकतों ने इस तरह की कोशिशें की हैं कि भारत के अंदर धर्म को लेकर, जातियों को लेकर आपस में मतभेद हो, संघर्ष हो, लेकिन भारत ने दिखा दिया, भारत की जनता ने दिखा दिया कि चाहे कोई कितनी ही गलतफहमी पाल ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भारत के लोगों को सलाम, भारत की सेना को सलाम, भारत की सरकार की काबिले तारीफ रणनीति को सलाम। और जिस तरह से एकजुटता दिखाई गई है, जिस तरह से एक मोहब्बत और मजबूती का परिचय दिया गया, वो काबिल तारीफ और दुनिया ने उसकी